क्या, अगर आप उसको थोड़ा एलैबोरेट करना चाहें। सर इसलिए आपको तो पिक्चर देखना पड़ेगा सर। अभी बता दो तो आप पिक्चर क्यों देखोगे? No, actually there is a reason to it. We thought a lot about it. फिलहाल हम केवल इतना कह सकते हैं कि 3 कलाकार हैं, इसलिए 3। अमित जी, Report to what your left. Sorry? I actually learned to drive. Yeah, actually, yeah. I know to drive, but I've never been a confident driver. पर इस फिल्म के लिए हालांकि मेरे उतने ड्राइविंग शॉट्स है नहीं, but I wanted to do it myself. I didn't want them to rig it or anything. So I actually drove around Kolkata. So it was great fun. Shujoy was my driving instructor, and that's the only real preparation. Baki, I enjoy playing a cop. It's the first time I played a cop, and driving is the only thing. Did you get a chance for doing action or probably shooting something? When you watch the film, you'll know. Amit ji, Report to what your right. left. Can I just Amit sir, over there, lovely. Amit sir, can you hear me? Yes. Amit sir, you have always been a supporter of women empowerment. You know, day before yesterday, when you were at the National Awards, an actor sitting alongside you who is today being admired for her fighting spirit in a great way. Wouldn't you say Kangana Ranaut is the perfect example of women empowerment, given the way she has single-handedly mounted a spirited defense against a powerful man? I'm sorry, can we keep this relating to the film, please? I'm sorry. Yeah, the lady over there. देखिए, किसी के बगल में बैठ करके जो उनका व्यवहार है या उनके साथ जो बीत रही है, उसके बारे में जो बगल में बैठा है उसको कैसे ज्ञान हो सकता है? आपके साथ में बैठा हूँ, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है कि आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। लेकिन आपकी बात जो है उसे उसकी मैं सराहना करता हूँ कि महिलाओं को शक्ति मिली, अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। हम सब जो है ऐसा हमेशा मानते आए हैं कि महिला जो है उसकी अपनी एक शक्ति होनी चाहिए। 50% जो है देश की आबादी, उतनी ही महिलाएं होनी चाहिए और उतनी ही उनको शक्ति मिलनी चाहिए। समाज में उनका एक महत्व होना चाहिए। हमने हमेशा ऐसा माना है और इन्हीं बातों को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर हज रैली में भी महिला को आगे नहीं किया जा रहा है। जी मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है भाई साहब। The lady in black and white, you asked your question. I really think it's none of my business to be judging anyone, but I will say this, that I have the greatest admiration for Kangana because she's standing up for herself. I think that is very creditable because as women, I think we find it very easy to stand up for other people, for our family members, for our children, for our husbands, for our parents, but we rarely stand up for ourselves, and she's standing up for herself. So kudos to her and more power to her for that. 46. पहले आपको बहुत बधाइयाँ फॉर नेशनल अवार्ड, एंड सेकेंडली ये आपको बता दें कि आप जो निज़ाम के बारे में बोला है वो बहुत जल्दी मुंबई में खार में उनका ब्रांच ओपन होते जा रहा है। ओह क्या बात है। निज़ाम इज ओपनिंग इन खार। ओह या बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लेकिन दुर्भाग्यवश अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया। तकरीबन 35-40 साल हो गए छोड़े। सर सिटीज लेकिन अभिषेक को भेजूंगा सर वहाँ का जो सिटीज का जो मोस्ट आइकॉनिक राइटर्स बिल्डिंग है, वहाँ पर एक पहली बार कोई शूट हुआ। इसके पहले कोई बंगाली फिल्म भी वहाँ पर शूट नहीं हुआ। तो राइटर्स बिल्डिंग में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेकंड सवाल है कि कोलकाता इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स, फिल्म, रविंद्र संगीत, फुचका एंड फूड एज यू सेड, बट इसमें से कौन सा चीज़ है कोलकाता का जो आप इतने साल मुंबई में रह के भी विच यू कनेक्ट इंस्टेंटली? रसगुल्ला। वो तो खाते नहीं है। अब छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी मिष्टी दोई खाता हूँ और मिष्टी जो आता रहता है हमारे पास, वहाँ से बहुत से हमारे कुछ मित्र हैं जो बेचते रहते हैं, वो खाता हूँ। और सर राइटर्स बिल्डिंग के बारे में? और बंगाल तो हमारे घर के अंदर है। প্রশ্ন আছে যে মিস্টার বচ্চন তো উনি সবসময় বলেন যে কলকাতা উনি বাঙালি। বাংলা বাংলা বাংলা
বাংলা কোয়েশ্চেন বাংলা আনসার আর বিদ্যা অলসো সেড কি ও কলকাতা ওর সেকেন্ড হোম। তোমরা মিস্টার বচ্চনকে নিয়ে ফিল্ম করেছো, বিদ্যাকে নিয়ে করেছো, এবং ওরাও অনেক বাঙালি ডিরেক্টরের সাথে কাজ করেছেন, এবং কলকাতার সঙ্গে যাতে এত স্ট্রং কানেক্ট, সেখানে কিন্তু বাঙালিদের একটা প্রশ্ন থাকেই যে কেন বিদ্যা বা মিস্টার বচ্চনকে কোনো বাংলা ফিল্মে দেখা যায় না, যেখানে তোমরা ওদেরকে নিয়ে এত কাজ করছো কলকাতা। I did actually start working in one, but then that film didn't happen. Bangla film. No, Anushandhan was a translation. It is a dub film. It is a dub chilo. देखो आपके राइट है कमेंट फ्रॉम दैट देखो कहानी और इस फिल्म तो दोनों में हम लोग जो स्टोरी टेलिंग का पैटर्न है वो सेम देख रहे हैं। वहाँ पे एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी थी, सुजोय की फिल्म थी कहानी, और ये तीन दोनों की स्टोरी टेलिंग का पैटर्न सेम सा दिख रहा है कि उधर भी हम लोग मतलब वो आउट नहीं कर सकते थे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है, और यहाँ पे मतलब दादाजी की भूमिका में ये भी इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुझे पता नहीं है, इसे न्यूज़ टू मी आप जो अभी बोल रहे हैं, कोई खतरनाक नहीं है फिल्म में, सब नॉर्मल लोग हैं। भारतीय सिनेमा में कोई ऐसी कहानी है जो सिमिलर नहीं है। एक लड़का होती है, एक लड़की होती है, दोनों का प्यार होता है, एक विलन होता है, वो उनके बीच में आता है, फिर ये हीरो जो है उसको मार देता है, अंत में दोनों मिल करके आगे चले जाते हैं। अच्छा, और 3 घंटे में पोएटिक जस्टिस मिल जाता है। विभू, इस फिल्म का जो पोस्टर है, तो इस फिल्म का पोस्टर किन्होंने डिजाइन किया है, क्योंकि इसमें इंसेप्शन की पूरी झलक दिखती है। रॉचिंगन्स ने किया है, और इंसेप्शन का कमेंट्स हमने वी हैव सीन दैट, बट अगर आप और भी फिल्म देखेंगे, फिफ्थ एलिमेंट हो या और भी 2-4 है, उनमें भी यू नो वी हैव सिमिलरिटीज ऑफ अ इमेज व्हिच इज रिवर्स। सो ऐसा नहीं है कि इंसेप्शन ही पहला पिक्चर था जिसमें ऐसा कुछ एज यूज किया हुआ था। आई थिंक फिफ्थ एलिमेंट हैज द सेम थिंग। Yeah, Mr. Bachchan, Amit sir, एक सवाल on your left. अमित सर, आपके राइट। Yeah, my question to you, sir, is that you've been working for almost about 42 years. 69 to 43 years. No. 47 47 years, sir. There was a period where there were scripts which were being written where you were playing second fiddle to the hero, either the dad or a character role. But in the last 2 to 3 years, whether it was Wazir, whether it was this film, we've been seeing increasingly, even Piku for that matter, that scripts are being written with you in the center stage. Are you telling them to do this, or this is happening automatically? I think they've just become sensible. Sorry, Yeah, exactly. I think whoever did not do that missed out a lot. If I could write a script, I'd be writing a script for him every day. No. Are you upset with the fact that I'm? If you're not upset, I'm really grateful and thankful to some of the writers who still consider me to be playing these kind of roles. I'm really very blessed and fortunate if they think about me like this. But yes, it does give me an opportunity to do things that I was never able to do earlier on. Because you played the leading man, and there are certain characteristics which I was just answering the other gentleman. There's a certain format for the leading man in all our films, and that's what I was doing. But yes, I do consider myself very blessed and very fortunate, and I hope that that there are many others who will come forward. I know Ribu is doing another one with me soon. It's already ready. So, आपके राइट। अमित सर, Given an opportunity, I write all my scripts with sir. Sorry. अमित सर, राइट। सर, कोलकाता जैसा अनुशासन, जो कोलकाता के लोगों में अनुशासन है, उस किस्म का डिसिप्लिन और किन इलाकों में देखते हैं? क्या हम माने कि यूपी में अगर हम कोई फिल्म शूट करें आपके साथ, सब जगह अगर आप मेरा ऐसा मानना हमेशा रहा है कि अगर आप जनता को एक बार जाके समझा दें, वो समझ जाते हैं। जनता आमतौर पर अनुशासित रहती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कलकत्ते की बात इसलिए की क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े से बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, संगीत हो। अब यहाँ बैठ कर सुनाना शुरू करूँगा आपको अपनी बातें तो पूरी शाम निकल जाएगी, लेकिन जितना मेरा अनुभव हुआ है कोलकाता के साथ,
हम लोग रात रात भर बैठे हैं कि बालीगंज में, जहाँ पर हमने पूरी रात बैठ करके शास्त्रीय संगीत सुना है। और एक ही शाम के अंदर मैं आपको बताऊं, रविशंकर, विलायत हुसैन, अल्लाह राखा, अलाउद्दीन जी, शांता प्रसाद जी, सब जितने म्यूजिशियंस एक ही शाम में, कभी भी संभव ही नहीं हो सकता कि एक ही शाम ये लोग बजाएं। इनको हम लोग सुनने बैठते हैं। खेल के मैदान में आपने देखा है किस तरह से ईडन गार्डन भरता है और कितने पैशनेट होते हैं। इसी तरह जब वो अपना स्नेह और प्यार दिखाते हैं किसी कलाकार के प्रति, तो वो मुझे आज भी याद है कि जब मैं महमूद साहब के साथ रहता था, अनवर अली मेरे मित्र थे, तो वो और धर्म जी गए थे, उनकी एक प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म थी, वो उसके रिलीज़ के लिए गए थे वहाँ। और उनको थिएटर का जो ऊपर एक छज्जा होता है वहाँ पर जाकर के खड़ा होना पड़ा क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी। और जैसे ही वो छज्जे पे निकले, इतनी ज़ोर से उनका स्वागत हुआ कि महमूद भाई और धर्म जी के आंसू गिर पड़े। और उनसे कहा गया कि आप कुछ बोलिए, तो उसने कहा कि मैं क्या बोलूँ, हमारे तो ये देख करके दृश्य जो है हमारे लिए इतना भावुक है। इस तरह की वहाँ की जनता है, वो आपको उठा करके ले जाएगी। मैं अपने अनुभव अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरा ऐसा लगेगा कि मैं अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत ही भावुक लोग हैं। हम जैसे कि अभी इस फिल्म में हमने हुगली नदी में शूटिंग की, और मैं एक और फिल्म की शूटिंग करने गया था वहाँ, दो अनजाने की। हमारे एक गाना करना था हमें बोटानिकल गार्डन में, जो कि हुगली नदी के उस पार है, हुगली में है। तो अगर हम सड़क से जाते तो समय लगता, और कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता है कि हम उधर जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने कहा कि यार इधर एक स्टीमर जाता है इस पार से, उसमें आप बैठ जाइए, चुपचाप से चले जाएंगे उस तरफ, और वहाँ उतर करके गाड़ी में बैठ के वो बोटानिकल गार्डन पहुँच जाएंगे और गाना शुरू हो जाएगा। तो अब बहुत सवेरे 6-7 बजे वहाँ एक स्टीमर चुपचाप से लग गया इस तरफ, और हम उसमें जा कर के बैठे। और जैसे ही वो स्टीमर निकला नदी में जाने के लिए, कुछ 200-300 लोग जो है पानी में कूद गए, कूद करके साथ में तैर के गए हमारे साथ उस तरफ। ये बहुत ही ये फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन एक इनकी जो भावना है ना, वो बड़ी अजीब है। और उसी जगह बोटानिकल गार्डन में एक तालाब था बहुत बड़ा, तो हम लोग तालाब के इस तरफ थे ताकि भीड़ जो है उधर रहे। तो भीड़ उधर थी, लेकिन वहाँ से हम लोग हाथ हिलाएं, शोर मचाएं। एक सज्जन जो थे उन्होंने कहा कि प्लीज सर कुछ हमको आना है, फोटोग्राफ चाहिए। तो मैंने कहा यार बेचारा बहुत परिश्रम कर रहा है, इसको बुला लेते हैं। तो ये ऑटोग्राफ ऐसे कागज मुंह में पकड़े और पेन ऐसे मुंह में धरे, पानी में तैरता हुआ पूरा तालाब पार करके आया मेरे पास, भीगा एकदम। और मैंने उसको ऑटोग्राफ दिया, उसने मुझे गले लगाया, चीखा चिल्लाया ये, और वैसे ही पानी में कूदी ऑटोग्राफ जितना ऑटोग्राफ लिया था सब मिट गया। तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कोलकाता की। मैं ऐसा तो में भी एक कहानी है ना। हाँ, अरे बाप रे, वो तो बताना नहीं चाहिए।